Good morning, ninth class. In last classes, we have started a new chapter, that is tissue. Okay, in tissue chapter, firstly we have studied about the plant tissue, types of plant tissue, meristematic tissue, permanent tissue, simple permanent tissue, complex permanent tissue, and the subtypes of simple and complex permanent tissue. Okay, and after that we have started second topic of this chapter, that is animal tissue. This animal tissue we have studied, it is divided into four types. First is epithelial tissue, the second one is muscular tissue, and the third one is connective tissue, and the fourth one is nervous tissue. Okay, muscular tissue. Now in last class we have completed the topic epithelial tissue, its types, structure of cells arranged, where it is present, all the subtypes of epithelial tissue we have completed. Today we are going to start second type of the animal tissue, that is muscular tissue. Muscular tissue further divided into three types: striated muscles, or you can say striated muscular tissue, unstriated or non-striated muscular tissue, and cardiac muscular tissue. And last in home class I told you about it, cardiac meaning that present in human heart. जो चीज़ हमारे दिल से रिलेटेड हो उसे हम मोस्टली कार्डियक में कॉट करते हैं. तो क्या है, जैसे स्टडी ऑफ व्हाट वी नोन इट कार्डियोलॉजी, उसे सेम कार्डियक मसल्स नेम से क्लियर है that are present in the human heart. Okay, now we are going to study about all types of the muscular tissue in detail. The muscular tissue meaning connective tissue help in the movement of the body. Muscular tissue is a connective tissue that help in the movement of the body. It consists of elongated cells called muscle fibers. But it consists elongated cells, इनको हम क्या बोलते हैं? Muscle fibers. It contains a protein called contractile protein which contracts and relaxes and help in the movement. देखिए, firstly what is the basic function of muscular tissue? It contracts and or you can say relax the body parts so that we can show the movement. Then two proteins are present in the muscular tissue, and one protein is contractile protein that help in the contraction and relaxation of the body organs, or contraction and relaxation of the organs to movement, or you can say for the movement. Okay, the muscles which can move under our will, meaning the muscles that are in control of our brain, the muscles that work under the control of our brain, under our will, meaning हमारी इच्छा के अनुसार जो काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Voluntary muscles. Which type of muscles are they? Voluntary muscles. What are voluntary muscles? Voluntary muscles are those muscles which work according to our will. जैसा हम चाहते हैं जो काम वैसा हो रहा है, that is voluntary muscles. Now this lecture that is delivered by me, तो इसमें जितनी भी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ that is according to my will. क्या मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ? जो पीपीटी मैंने लिखा that is according to my will. आप कुछ लिख रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, स्पीकिंग, थिंकिंग, that is all things are controlled in your will. मीनिंग ऑल दीज एक्शंस आर द voluntary. सिंपली हम voluntary एक्शंस की बात करें, मसल्स की बाद में करेंगे. voluntary वर्ड का मीनिंग क्लियर कर लें. voluntary एक्शन क्या होते हैं? द एक्शंस दैट आर इन कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन. मीनिंग जैसे हमारा रीडिंग, लिसनिंग, ये सारे एक्शंस किसके कंट्रोल में है? ब्रेन के कंट्रोल में. हमारी विल के अनुसार हमारे बोलते हैं. अगर आपने किसी को थैंक यू बोलना है, इट्स योर विश, तो आपने थैंक यू बोलना है, गुड मॉर्निंग विश करनी है. मीनिंग जो हमारी विल, जो हमारे कंट्रोल में काम होते हैं. ओके, वन थिंग इज जो होते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं. इनवॉलंटरी वर्ड का मीनिंग क्लियर करते हैं थोड़ा सा. जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. डाइजेशन ऑफ द फूड है, इज इट इन योर कंट्रोल? कि आप चाह सकते हो कि आप डाइजेशन रोक लो? नो, डेट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. मीनिंग वो एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी. अगर हम मसल्स की बात करें, मीनिंग सेम ही रहेगा. मीनिंग द मसल्स दैट वर्क अकॉर्डिंग टू योर विल, उनको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स. द मसल्स दैट डू नॉट मूव, that do not show movement under your will or in control of your will, we call them involuntary muscles. So totally muscles two types की हो सकती हैं. either वो voluntary होंगी, either वो involuntary होंगी. voluntary meaning that work under our will, that can move under our will. Okay.
Involuntary meaning muscles which do not move under our will. Okay, we call them involuntary muscles. Okay, basically we divided muscular tissue into three types, or muscles into three types. So one is striated muscles. The first one is the striated muscles. जैसे striated meaning states बनी हुई है जिसमें क्या अलग अलग तरह की धारियां बनी हुई हैं, हम कह सकते हैं we call that striated muscles. Now what is the specificity of the striated muscles? If we observe any slide of the striated muscle under the microscope, what we observe, present it has two color bands. One is dark color band, and alternative band is in light color. Dark color, light color. Meaning जो striated muscles हैं, they have light and dark color states, or you can say bands. बी एंड डी बैंड, जो अलग अलग कलर के बैंड जिसमें मतलब डार्क और लाइट अल्टरनेटिव बैंड्स फॉर्म हो रहे हैं, वी कॉल देम स्ट्रेटेड मसल्स. और यू कैन से जो इसमें स्ट्रेट्स बन रही है ना डार्क और लाइट कलर की, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज स्ट्रेटेड मसल्स. ओके, द फर्स्ट मीनिंग स्ट्रेटेड मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स, मीनिंग दे आर द मसल्स दैट मूव अकॉर्डिंग टू आवर विल, जो हमारी इच्छा के अनुसार मूव करती हैं. स्ट्रेटेड मसल्स उनमें सिर्फ एक मसल्स हैं. तो क्या है, जैसे सेकंड वही हो गया, लाइट एंड डार्क कलर स्ट्रेशंस प्रेजेंट है. द सेल्स आर लॉन्ग. अब इस तीसरे मसल्स के जो सेल्स हैं, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट? लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. मीनिंग इन वन सेल देयर इज मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट. In single cell there is more than one nucleus present. We call that multinucleated cells. Okay, they are also called skeletal muscles. Now the striated muscles are also known as skeletal muscles. Sometimes question बन जाता है why skeletal muscles are known as skeletal. Skeletal meaning क्या होता है? जो skeleton system होता है हमारा, that meaning skeletal. तो skeletal muscles क्या होती हैं रज़े? Because they are attached to our bones. ठीक है, skeletal muscles क्यों कहते हैं? Because striated muscles are attached to our bones. Okay, that's why we call them striated muscles. Meaning it helpful in making our skeleton system, because they are attached with bones and help in all the movements of the bones. So we call them skeletal muscles. Sometimes question is like that, why skeletal muscles are known as striated muscles. अब आपको थोड़ा मोल्डिंग है, किसी भी तरह से हो जाए. वाई स्केलेटल मसल्स आर नॉन एज स्ट्रेटेड मसल्स. स्केलेटल मसल्स आर नॉन एज स्ट्रेटेड मसल्स बिकॉज स्केलेटल मसल्स हैव लाइट एंड डार्क कलर अल्टरनेटिव बैंड्स. बिकॉज skeletal muscles have a light and dark alternative bands. That's why we call them striated muscles. That's why we call them striated muscles. Okay, Raze? सेकेंड हमारे पास जो टाइप है वो क्या है? अनस्ट्रेटेड मसल्स, और यू कैन से स्मूथ. स्मूथ मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ क्या बिल्कुल एक जैसी है. तो क्या है स्मूथ मीनिंग? नो बैंड्स. ओके, अनस्ट्रेटेड मीनिंग भी सेम हो गया कि जो स्ट्रेट्स हैं वो नहीं फॉर्म होंगी. कहते हैं दीज आर अनवॉलंटरी मसल्स, मीनिंग द मसल्स दैट आर नॉट इन आर that cannot move in according to our will. The muscles that cannot move according to our will, having no striation, meaning, or you can say having no bands. These cells are long spindle shaped. इसमें cells क्या थे? cylindrical थे. ओके, लॉन्ग थे, लेकिन इसमें क्या है? स्पिंडल शेप्ड है एंड यूनिन्यूक्लिएट है. उस केस में हमारे पास क्या थे? जैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल थे. इसमें मीनिंग इन सिंगल सेल सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. इन दिस केस देयर इज अ यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स. ओके, दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल. अब हमें उसकी लोकेशन मिलती थी ना कि बोन से अटैच है, तो इधर जो इनकी प्रेजेंस लोकेशन कहाँ पे है? फर्स्ट दे आर प्रेजेंट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप जो पूरे का पूरा फूड सिस्टम है, ब्लड वेसल्स, लंग्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स. ब्रोंकाई क्या होता है? जो आगे ट्रैकिया क्या है, जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स में जाकर ओपन हो रहा था, वी कॉल दी स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ब्रोंकाई. ठीक है, देन आइरिस ऑफ आई, जो हमारी आई में आइरिस प्रेजेंट होता है, उसमें भी क्या होती है? हमारे पास स्मूथ मसल्स होती हैं. दे हेल्प इन इनवॉलंटरी मसल्स. जैसे देखिए जो ब्लिंकिंग ऑफ आई है, आपकी आई की जो मूवमेंट है, ब्लिंकिंग ऑफ आई है, क्या वो आपके कंट्रोल में है? डेट इज इनवॉलंटरी एक्शन. डाइजेशन ऑफ फूड क्या कैन बी कंट्रोल द एक्शन ऑफ द आवर डाइजेस्टिव कैनाल? नो, वी कांट कंट्रोल, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी मसल्स हैं? अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं. दे डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल.
उनकी मूवमेंट हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होती। ब्लड वेसल्स हैं, क्या ब्लड वेसल्स हमसे पूछकर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही है? नो, बिकॉज दीज दे हैव इनवॉलंटरी टाइप ऑफ मसल्स। ओके, तो क्या है हमारे पास ये सारी की सारी जो लोकेशंस मिली हैं इस साइड क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। सो इनका वर्क भी क्या होता है, एक्शन भी होता है, डेट इज नॉट इन आर कंट्रोल, डेट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आर विल। ओके रजे, द थर्ड टाइप इज, तो थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, कार्डियक मसल्स। मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था सिंपली कार्डियक मसल्स होती कहाँ है, लोकेशन इनकी मैंने आपको क्लियर की थी, ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होती है। बट कार्डियक मसल्स ऑल्सो इनवॉलंटरी मसल्स। देखिए तीन हमने मसल्स की टाइप स्टडी की हुई है, इनमें से सिर्फ स्टेटेड मसल्स ही हमारे पास वॉलंटरी हैं, मीनिंग जैसे हमारी आर्म्स में प्रेजेंट है, हमारी आर्म्स की जो मूवमेंट है दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर विल। मैंने क्या लेग्स की जो मूवमेंट देनी है दैट इज अकॉर्डिंग टू माई विल। मीनिंग क्या है, जे मसल्स क्या हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं, बट एलिमेंट्री कैनाल की जो मूवमेंट है, जो इसके एक्शंस हैं, जो मसल्स की क्या है, रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन है, दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल। हमारा जो स्टमक है, जो मसल्स हैं, उसके एक्शन नॉट इन माय कंट्रोल। आप और एग्जांपल ले लो, इन्होंने दी थी ब्लड वेसल्स, फिर से मैं वही रिपीट कर रही हूँ, दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल। वो क्या थी, इनवॉलंटरी थी। सेकेंड, अब हम कार्डियक मसल्स की बात कर रहे हैं, दीज आर ऑल्सो इनवॉलंटरी। क्या आपका हार्ट बीट आपसे पूछ कर रहा है? नो, मीनिंग उसे ना तो आप अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हो, ना तो क्या आप अपनी मर्जी से उसे क्या है डिक्रीज कर सकते हो, ना तो यू हैव टू इंक्रीज यदि, बिकॉज आपके पास कोई राइट ही नहीं है। वो ऑटोमेटिकली कंडीशन ऐसी होती है, किसी में इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वो केस होते हैं, लेकिन आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते। मीनिंग क्या है, जो हार्ट मसल्स होती हैं, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी मसल्स हैविंग फेम स्टेशन। लेकिन इसमें क्या है, जैसे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब हल्के से बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। These cells are long cylindrical branch, तो इसके सेल्स क्या है, लॉन्ग होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे एंड ब्रांच होंगे। अभी तक कहीं पे भी ब्रांच वर्ड नहीं आया। इधर जो सेल्स हैं कार्डियक मसल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसमें जो सेल्स होंगे वो ब्रांच होंगे एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड होंगे। वैसे एक बात नोट की, ये मोस्टली दोनों का मिक्सचर से ज़्यादा है इसमें, मतलब ऐसे नहीं कि एक टाइप की कैरेक्टर्स है, कुछ उसके टाइप वाले कैरेक्टर्स हैं, कुछ उसके टाइप वाले कैरेक्टर्स हैं। कहते दे आर प्रेजेंट इन हार्ट एंड हेल्प्स इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जो हमारा हार्ट पंप, ब्लड पंप कर रहा है ना, कंट्रैक्ट कर रहा है, नहीं तो रिलैक्स कर रहा है। ब्लड पंप करने के लिए वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, पहले कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, रिलैक्स होते हैं, फिर ही पंपिंग हो रही है ना। मीनिंग ऑल दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द कार्डियक मसल्स। ऑल दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द कार्डियक मसल्स। मैं उससे पहले आपको इनकी वो दिखा दूँ, स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए ह्यूमन हार्ट से एक लाइन जा रही है और मसल्स ड्रॉ की हुई है, मीनिंग लोकेशन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट में, और मेन क्या है, कार्डियक मसल्स। और हमारे पास जो कार्डियक मसल्स हैं इसकी डिटेल स्ट्रक्चर दे रही है हमारे पास। देखिए जैसे बैंड्स प्रेजेंट है, हल्के से बैंड्स प्रेजेंट है, सेल्स क्या है, वही है, सिमेट्रिकल है हमारे पास, और क्या है साथ में क्या है, जो ब्रांचेस मीनिंग इंटर एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ब्रांचेस निकल रही हैं, ब्रांच सेल्स की हमने जैसे बात की थी, और यूनिन्यूक्लिएट है, किसी में मोर देन वन न्यूक्लिएट में यूनिस नहीं है। स्केलेटल मसल की बात करूँ आप, और ज़्यादा आप कह सकते हो स्ट्रेटेड मसल्स की बात करो, अगेन इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है, बहुत ही हल्के हल्के से, आपको मेरी विजुअल नहीं है, लाइट एंड डार्क, इधर देख लो लाइट एंड डार्क बैंड्स क्या है, जो जे वाला पोर्शन है इतना कि डार्क डार्क डार्क, ये सारे बीच बीच में क्या है, डार्क प्रेजेंट है, और इन बिटवीन क्या है, लाइट। ओके जैसे नेक्स्ट हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं, इसकी तो सेल्स की शेप भी क्या अलग से होती है, ये तो मीनिंग यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स ऑल्सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि बायो में डायग्राम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो टुडे have studied about the muscular tissue, or you can say muscles. Okay. So two types are pending. One is ligament, blood वगैरह connective tissue, and the second one is the nerves tissue. Okay. In next class we will study about these two types. Okay. So hope so till now you understand all the topic. Okay. Thank you.